Hello everyone, good evening. I'm Shreya Dhondial. As always, it is very good to see you. It's a very sad start to the week, ladies and gentlemen, when we have to debate a bizarre spin on India's loss to South Africa last evening. Ladies and gentlemen, it's really bizarre. When a cricket loss is put down to the religion of its team players, you then know just how polarized, just exactly how polarized India's political pitch is. As expected, it was Team OAC that bowled the googly. Shoaib Jamai, a valued member of the AIMIM, said he knows why India lost the match to South Africa last evening. And what was his logic? The logic was absolutely bizarre. He essentially said, ladies and gentlemen, that it was players like Mohammad Siraj, it was players like Mohammad Shami, it was players like Sarfaraz Khan who were ignored, ladies and gentlemen, which is why, according to him, Team India lost. That's the bizarre logic that has come in. Now, as expected, there has been a barrage of reactions that have come in. Let's quickly listen into that. बात ये है, खेल को खेल की नज़र से देखना चाहिए, धर्म की नज़र से नहीं देखना चाहिए। अभी जिस तरह का मामला चल रहा है कि मुस्लिम समाज के अच्छे खिलाड़ियों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिसकी वजह से देश की टीम आज हार से दो चार हुई, और अच्छे खिलाड़ी जो देश को जीत दिला सकते हैं, ऐसे लोगों को आगे लाना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हो। मगर मैं ये नहीं मानता हूँ कि रिलीजन के बेसिस पे प्लेयर चुनने चाहिए। जो अच्छे खिलाड़ी है सबको मौका देना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि एआईएम जो पार्टी है वो बी टीम है, और बी टीम का काम ही होता है रिलीजन के नाम पे बांटने का। मेरा ये कहने का मतलब, अगर हमारी टीम नहीं जीत पा रही है और उसके अंदर बदलाव चाहिए तो उसके बदलाव होने चाहिए, मगर कोई धर्म के नाम पे, जात के नाम पे प्लेयर सिलेक्ट नहीं होना चाहिए। जो अच्छा प्लेयर है उसको मौका, हर अच्छे प्लेयर को मौका मिलना चाहिए। नहीं, ऐसा है कि मोहम्मद सिराज जो खेला है, शमी जो खेला है, दोनों ने हरदम मुश्किल वक्त में भारत को मैच जिता के दी है। अगर उनके ऊपर अन्याय होता है तो मुझे लगता है कि ये क्रिकेट के ऊपर अन्याय है, जाति पाति धर्म के ऊपर जाके क्रिकेट होता है। देखिए, आजकल हर जगह ना धर्म को हिलाया जा रहा है। डेवलपमेंट, इंसाफ की बात बिल्कुल खत्म हो चुकी है। जो किसी धर्म का भी आदमी हो, अच्छा खिलाड़ी हो, उसको खिलाना चाहिए, और जानबूझ करके किसी धर्म को साइड करना, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है किसी धर्म के साथ। Now, ladies and gentlemen, the Congress is claiming that OAC is the B team of the BJP and always becomes an active polarizer before every election. The BJP, of course, is calling this a senseless pitch. मुझे लगता है शोएब जमी और सपा को केवल धर्म के आड़ में खेल को भी राजनीति में घसीटने का काम कर रहे हैं। एक विशेष धर्म से आने पर एक विशेष धर्म के खिलाड़ियों के पैरोकार बनने की कोशिश गलत है। मुझे लगता है खेल को खेल भावना से देखना चाहिए, क्रिकेटर को क्रिकेटर की तरह देखना चाहिए, उसे हिंदू और मुसलमान में नहीं बांटना चाहिए। The 15-player squad also has Muslim. Even then, now All India Majlis Ittihadul Muslimin, which is a party exclusively meant for the unity of Muslims, not Indians, is preaching secularism to others. Stop injecting communal politics even into Indian cricket. मौका मिला नहीं, खेल में भी धर्म को घुसेड़ दिया। यहाँ भी मुसलमान, हाय मुसलमान। I mean, what's wrong with these people? What Gautam Gambhir is doing as an Indian coach, not as a BJP MP. He's no more MP also. Ladies and gentlemen, India was handed a 76-run defeat at the hands of the 2024 runners-up South Africa, giving the men in blue their first defeat in the tournament. This also happened to be India's first defeat in T20 World Cups in 13 games, which gives a sense of the quality of cricket Team India has played over the last few years. The team had a terrible day yesterday. It was as simple as that. To put it down to Muslim talent being ignored is hate politics of a World Cup winning level. Mr. Jamai should have known that Siraj is actually part of the top 15 in the team right now, which means if India wins the T20 World Cup, he will be one of the people lifting the trophy. Mr. Jamai should have also known that Shami is coming back after an injury, and in T20s, younger players are preferred. He's 36 right now. Sarfaraz Khan, the third player that the AIMIM leader is naming, is more of a test player than a T20 player. They were dropped
simply because there were better players in the team. Why did he then bring in the religion of players into the pitch? Will his logic hold if one were to ask why Shubman Gill was dropped? Will he say it was because Gambhir was ignoring Sikh talent? Let me quickly introduce my guest to you this evening. Thank you very much. Nikhil Sharma is a sports commentator joining us on the broadcast. Dr. Shalini Ali will be with us in just a bit. Thank you very much. Dr. Fahim Beg is a social activist. He's joining us on the broadcast as well. And Kapish Srivastava is a spokesperson of the Samajwadi Party joining us on the broadcast. Gentlemen, thank you very much. Shalini Ali will be joining us in just a bit. Dr. Fahim Beg, can I please ask you what exactly is the AIMIM trying to say? Are they trying to say that there should be reservation in Team India, in India's cricket team, and that Muslim players under this reservation and under this quota should play irrespective of whether there are better players than them or not? नहीं, यहाँ नीति की बात, ये नियत की बात है। गौतम गंभीर जिस प्रकार से अगर उनके समय की हम बात करें तो वो आउट ऑफ फॉर्म हमेशा रहते थे और हमेशा टीम में बने रहते थे। क्या ऐसी टेक्नोलॉजी थी, क्या ऐसी टैक्टिक्स थी, क्या उनके ऐसे कॉन्टैक्ट थे कि वो हमेशा आउट ऑफ फॉर्म रहते थे और इंडियन क्रिकेट टीम में बने रहते थे। आज उनको ये मौका मिला है कि अपने देश के होनहार खिलाड़ियों को किस प्रकार से उन्हें मौका देना चाहिए। अफसोस इस बात का है क्योंकि उस राजनीति से निकलकर वो आ रहा है जिस राजनीति इस देश की दिशा और दशा बदलती है। प्रधानमंत्री जिस प्रकार से अपने चुनाव में कहते हैं कि ये सोना जो है लूट लेंगे मुसलमान, हिंदुओं का सोना जो है मुसलमानों को बांटा जाएगा। फिर इनका एक पूर्व सांसद है राजस्थान से जो कल कंबल बांट रहा था, तो वो नाम पूछकर, धर्म पूछकर कंबल बांट रहा था, बल्कि उसने वापसी छीन भी लिए। इसी के साथ आप देखेंगे कि किस प्रकार से सिराज को, सरफराज को और मोहम्मद शामी को हमेशा समय समय पर जो है इग्नोर किया गया, साइडलाइन किया गया। भले ही उनकी फॉर्म अच्छी चल रही है, वो रणजी ट्रॉफी में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, अच्छी विकेट्स निकाल रहे हैं शमी साहब। सरफराज को आप देख लें या सिराज को देख लें, जो हिंदुस्तान के लिए बहुत जबरदस्त एक अच्छे प्लेयर हैं। तो कहीं ना कहीं चलिए डॉक्टर बेग, राजनीति से आने की वजह से गंभीर साहब के दिमाग में, चलिए लेकिन एक बात बताइए डॉक्टर बेग, एक मिनट डॉक्टर बेग, गौतम गंभीर जो थे एक टाइम पे बीजेपी के एमपी थे दिल्ली से, क्या अभी भी वो बीजेपी के एमपी हैं दिल्ली से, या उन्होंने पॉलिटिक्स से त्याग ले लिया? मानसिकता गई नहीं है और उनको जो उनको विड्रॉ किया गया था ना, उनकी जो लोकसभा सीट की दावेदारी, उनको ये कहा गया था कि आप यहाँ से अभी विड्रॉ कीजिए, फिर आपको दूसरी जगह भेजा जाएगा, काम आप वही करेंगे वहां पे भी जाके। आपने जो काम बीजेपी की जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति है वो आपको करते रहना है, भले ही आप पार्टी में रहें या पार्टी के बाद जाएं। तो वो गौतम गंभीर उसको बहुत अच्छे से बखूबी निभा रहे हैं। आप देखें तो उनको आप ग्राउंड पे देखेंगे तो डिक्टेटर की तरह नजर आते हैं गौतम गंभीर, क्योंकि तो उनको बहुत अच्छे से जो है सपोर्ट किया जा रहा है, बहुत अच्छे से अमित शाह साहब के जो साहबजादे हैं उनको बोल रहे हैं ये पिच आपके लिए रखी गई है और आप यहाँ से चाहे बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, या किस तरह की राजनीति आपने खेलनी है वो आप करते रहिए, आपको राजनीति की ही बना गया है। डॉक्टर बेग, आपने अवेश खान का नाम सुना है? सुना है? एक यंग प्लेयर है अवेश खान, सुना है नाम आपने? लखनऊ के लिए खेलते हैं। आई कम फ्रॉम लखनऊ सो आई नो, हैं, जानते हैं? तो वो किसकी मेंटरशिप के अंडर उसने 13 आईपीएल मैचेस खेले? कौन था लखनऊ की टीम का मेंटर, बताइए? गौतम गंभीर। कोलकाता नाइट राइडर की भी यही हुआ करते थे। एक मिनट, मैं कोलकाता की बात नहीं कर रही हूं, मैं लखनऊ की बात कर रही हूं, क्योंकि मैं अवेश खान की बात कर रही हूं। आप मुझको बताइए, अवेश खान ने 13 आईपीएल मैचेस अंडर गौतम गंभीर मेंटरशिप खेले या नहीं खेले? नहीं, मैं आपकी इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं, मगर मैं ये भी बताना चाह रहा हूं कि कोलकाता नाइट राइडर्स, जिनको शाहरुख खान को भी देशद्रोही गद्दार कह दिया गया था, उस आदमी ने पूरी कमान अपनी टीम को दे रखी थी। तो इनको ये भी याद रखना चाहिए कि अब आप कोलकाता नाइट राइडर्स पे चले गए, शाहरुख खान पे चले गए। मैंने आपसे सिंपल सवाल पूछा है, आप कह रहे हैं दिस इज गौतम गंभीर हेट पॉलिटिक्स, दैट ही शुड रिमेंबर दैट ही इज नाउ द कोच ऑफ टीम इंडिया एंड ही इज नॉट अ बीजेपी एमपी। यू आर सेइंग दैट ही हैज डिस्क्रिमिनेटेड एंड डेलिबरेटली ड्रॉप्ड मुस्लिम प्लेयर्स बिकॉज ही डजंट लाइक मुस्लिम प्लेयर्स। उसका जवाब मैंने जब आपसे मांगा अवेश खान को लेकर, आपके पास कोई जवाब नहीं है ना? Anyway, let Nikhil come in. Nikhil Sharma, please come in. The simple point I'm trying to make is that Shami or, Sarfaraz Khan, they are good players. There is no doubt about that. But at this point of time,
There are better players than them. It's as simple as that. Hi Shreya, thank you for having me on this debate. Though, you know, it pains me a lot that for something as important as sports, we are bringing up the religion topic here. You know, it's a long conversation. As far as Gautam Gambhir is concerned, we might not agree with him on a lot of things. Trust you me, religion is not one of them, especially on the cricket field, because the guy is, my honorable co-panelist said he never made runs. I think if you go back to the ODI World Cup finals and find out who scored the maximum number of goals and won maximum number of runs and won India the match, a certain Gautam Gambhir's name will come up. Who won KKR their initial matches? A certain Gautam Gambhir, you know, those titles as a captain. Who were the main players there? Amongst the 5 players, you will find 2 of them, Yusuf Pathan and Saqib-ul Hasan, as the main players that he pushed forward. As far as Shami is concerned, unfortunately, fantastic player injured, you know, was a key member. As far as, Siraj is concerned, I think Gautam Gambhir prefers him in the tests and the ODIs. Correct. Not necessarily the T20. Correct. And as far as Sarfaraz is concerned, he was played in the tests. I don't think he's in a form to even play IPL, but he was picked late. So from a sports angle, India has a lot of talent. Mind you, for all my disagreements with what Gautam Gambhir has done, if there's any player who should have felt slightly slighted, it was Akshar Patel and not nobody else. Correct. If there's any player who would have felt that I should have played instead of Washington Sundar, it would have only been Akshar Patel because he had got 6 wickets. Washington Sundar hasn't worked. No other player at this point in time merits an inclusion in the Indian team. And we're talking about Shubman Gill, we're talking about Dr. Rohit Beg, Sharma. जवाब दे दीजिए. The list is endless. निखिल बीजेपी को नहीं बिलोंग करते हैं. Nikhil is a sports commentator and he's listed reasons why these 3 players are not in the team. They are not playing in the team right now. I mean, if the AIMIM's logic is to hold, can Shubman Gill stand up? Can Shubman Gill today stand up and say, I'm not playing in this team because I'm a Sikh and Gautam Gambhir doesn't like Sikhs? What will Akshar Patel say? That I'm not included in this team because I'm a Hindu and Gautam Gambhir doesn't like Hindus. सोच तो लीजिए बोल क्या रहे हैं. मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि खेल एक अलग फील्ड है. वहां पर देश को जिस प्रकार से रिप्रेजेंट करना चाहिए, यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से हमारी राजनीति का स्तर गिर गया है कि 2 कप्तानों को हाथ मिलाने के लिए भी बताइए राजनीति की जा रही है. वहां पाकिस्तान को हमारे खेल से जवाब दिया जा रहा है. जब खेल की भावना की बात आती है तो हमें ये मैदान सिर्फ बल्ले और बॉल के बीच में रहना चाहिए. वहां से संदेश क्या दिए जा रहे हैं, वो उनका बाइकआउट कर रहे हैं, वो उनका. अरे साहब, आपने खेल को कहां खेल रहने दिया? आपने तो अपनी राजनीति का मैदान बनाकर पूरे विश्व में हमारा जो सर झुकाने का प्रयास किया है कि हमारा जो क्रिकेट मैदान है वो राजनीति का मैदान बना दिया गया है. यही तो एक कहीं ना कहीं वो टी से जो बार बार उठ के आती है. क्या इनकी मंशा है? जो पैनलिस्ट हैं, जो सेलेक्टर्स हैं, जो आईसीआईसीआई के बीसीआई के जो हमारे जय शाह साहब हैं, ये क्या हो रहा है? अमित शाह जो है, आपका लॉजिक ही मुझे समझ नहीं आ रहा है. आपका लॉजिक ही मुझे समझ नहीं आ रहा है. पहले आप 3 प्लेयर्स की रिलीजन लेके आते हैं, फिर आप पाकिस्तान और बांग्लादेश और हैंडशेक की बात ले आते हैं. इंडिया ने अपना एक स्टैंड लिया, नहीं करेंगे हम हैंडशेक. मैडम, आप मेरा सवाल, आप मेरे सवाल की गंभीरता को नहीं समझ पा रही हैं. मैं वही कहना चाह रहा हूं. जिस प्रकार, चलिए डॉक्टर बेग, एक बात बताइए. एंड कपीश जी, इवन यू कैन कम इन हियर. इफ आई एम the coach of a team, what is my number 1 goal? My number 1 goal is that my team wins. Now, if I want my team to win, I will obviously pick the best players. Will I say, this guy is super talented, but his name is Mohammad Shami, so I will not pick him? ऐसा होता है क्या डॉक्टर बेग? Ultimately, winning is everything in a game. A coach knows that. Why on earth will he hamper his own win and his own chances by leaving out players despite them being talented? आपको अभी फेहरिस्त गिना दिया on why these 3 players are not playing, yet you don't want to listen to it. Please, मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ. मोहम्मद शमी ने लास्ट जो वर्ल्ड कप पे बहुत अच्छी मेहनत करके देश के टीम को किस प्रकार से प्रखर बनाया, मगर आखिर में जो उनसे जिस प्रकार से खेल है, आप हमेशा अच्छा नहीं खेल सकते, आप हमेशा बुरा नहीं खेल सकते. तो शमी थोड़ा सा चूंकि
तो किस But that प्रकार से holds उनको true for ट्रोल किया गया। Rohit Sharma, that holds true for Virat Kohli, that holds true for Rishabh Pant also. जिस जब आप प्रकार अच्छा से खेल रहे हैं आप मोहम्मद टीम शमी में को हैं, जब आप ट्रोल अच्छा किया नहीं गया, खेल रही हो विन ड्रॉप। देश के बड़े बड़े लोगों को उसमें आना पड़ा। अब या तो मेरी सुन लीजिए, आप अपनी बता लीजिए श्रेया मैडम। मैं जो टीस और जो दुख बताना चाह रहा हूं उस पर आपका ध्यान नहीं जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं आखिरी मैच में जिस प्रकार से शमी थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म हुए तो उनको इतना ट्रोल किया गया। उनके पूरे मैच जो वर्ल्ड कप का टूर था, उनकी तमाम मेहनतों को और उनकी कुर्बानियों को ट्रोल तो दूसरी साइड से भी हुए बेचारे मोहम्मद शामी। ट्रोल तो दूसरी साइड से भी हुए। रोजा क्यों नहीं रखा, रोजा क्यों नहीं रखा, किसने ट्रोल किया मोहम्मद शामी को, याद है आपको? शालिनी अली, प्लीज कम रिस्पॉन्ड टू मिस्टर बेग। I think it's a habit of AIMIM and their party and all of them to bring in very silly agendas. They are bringing in religion into cricket. They are bringing religion into sports. What does he know? How is the captain thinking? And what best is the team manager thinking? Who is he to give a dictatorship kind of a statement on why they have not been taken in and why those other players have been taken in? What does he know about the form? What does he know about the fitness schedules? What does he know about anything regarding the game rather than just seeing it on TV and making a big issue out of it, politicizing it once again? Why are you bringing religion into politics? And you are bringing it now into sports. What is this kind of an agenda that they are holding against every human being in this country who is a non-Muslim? Sorry to say, you cannot bring politicizing of religion with non-Muslims or with Muslims. You're playing with sentiments. It's a sport, and this sport has been there for years. I mean, there are movies that have been made where you have seen that the captains, while the movies are made, they've been researched. And in those movies, they have shown that the captains may have not picked up the best players for that particular match. And they have picked up the other players for that particular match. They have to keep in mind different issues. They have to keep in mind different parameters. How can you just sit on TV and make a discussion and think about it कि नहीं जी वो मुसलमान है इसलिए उसको नहीं लिया? आप मोहम्मद अजरुद्दीन को भूल गए, वो भी तो मुसलमान थे, वो भी तो कैप्टन थे इस देश के क्रिकेट टीम के, आप उनके बारे में कैसे भूल गए? शमी ने जब रमजान के दौरान अपने देश के लिए, अपने देश की टीम के लिए उन्होंने मैच खेला, तब आप लोगों ने कहा कि उसने रोजा क्यों नहीं रखा? अब जब शमी की फिटनेस को लेकर अगर टीम ने ये सोचा कि चलिए हम इन्हें नहीं लेते तो वो आपको बड़ी प्रॉब्लम है। कल शमी को ले लिया जाएगा और वो मैच अल्लाह ना करे, मैं कह रही हूं हार जाएंगे तो आप लोग कहोगे कि जानबूझ के हमारे मुस्लिम प्लेयर को विंडिक्टिव तरीके से प्रोजेक्ट करने का तरीका दिया गया। चिट भी तुम्हारी, पट भी तुम्हारी, हेड्स योर्स, टेल्स योर्स। कपिल जी, विक्टिम कार्ड अब चलेगा नहीं। हर चीज में हाई मुस्लिम नहीं चलेगा। AIMIM's पॉलिटिक्स इज नाउ वेरी क्लियर। 4 स्टेट्स में इलेक्शन है, शुरू हो जाइए। देखिए, इसमें कहीं दो राय नहीं है और हेड और टेल से ही मैं आपको कहना चाहता हूं कि देखिए AIM का जन्म ही भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है, वरना उनका कोई मिसाल है नहीं पूरे भारत के अंदर। और जो रोगी को भाए वही वैदा फरमाए, ये एक कौकसी लड़ाई है जो आपको दिखाई दे रही। एम दोनों का एक है। कम से कम खेल में और सेना में इस तरह की राजनीति, जो नकारात्मक राजनीति है, जो देश के विरुद्ध सीधे दिखाई देती है, उसको छोड़ देना चाहिए। और मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि देखिए, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, गौतम गंभीर जब भारतीय जनता पार्टी से सांसद रह चुके हैं, आज वो नहीं है, तो आपने उनको कोच दूसरे तरीके से बना लिया। जैसे जयशाह साहब जो है बहुत बड़े क्रिकेटर थे, उनको ICC का बना दिया। तो बात इस चीज की है नहीं तो कि जब आप कपिल जी क्या बोल रहे हैं कि गौतम गंभीर को टीम इंडिया का कोच इसलिए बनाया क्योंकि वो बीजेपी के साथ थे? आप ये कह रहे हैं कि उनकी कॉम्पिटेंस नहीं थी? कॉम्पिटेंस एक मैच हारे हैं अभी हम, एक। सुन ले, नहीं सुन ले, एक बहुत स्पष्ट सी बात है, कुछ चीजें आदर्श के लिए होती हैं। हाँ। हम गौतम गंभीर को ये कतई नहीं कह रहे हैं कि वो अच्छे प्लेयर नहीं है या अच्छे कोच नहीं है। हाँ। मैं ये बात नहीं कह रहा। हाँ। लेकिन कुछ चीजें ऐसी, जैसे मान लीजिए मैं न्यायाधीश हूं और मेरे भाई का कोई केस मेरे ही न्यायालय में आ जाए। हाँ।
तो मैं तुरंत केस से हट जाऊंगा। ये इथिक्स कहती है। नहीं तो आप कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं कपिल जी? गोल मोल ना घुमाइए, सीधी बात बोलिए। आप कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं? आप कह रहे हैं गौतम गंभीर ने अपनी टीम का सिलेक्शन रिलीजन के बेसिस पे किया, आप ये कह रहे हैं? इफ दैट इज द केस, इफ दैट इज द केस, व्हाई शिराज प्लेइंग? बिल्कुल नहीं, मैं ये कह ही नहीं रहा हूं कि गौतम गंभीर ने धर्म को देख करके ये सिलेक्शन किया। हम ये कह रहे हैं आदर्श ये होता कि जो आदमी पॉलिटिक्स में आ चुका है उसको कोच नहीं बनाना चाहिए, जबकि मैं जान रहा हूं कि गौतम गंभीर के अंदर इस तरह की कोई बात नहीं थी। लेकिन आज तो अगर बात नहीं है क्रिएट की गई है, कपिल जी, अगर बात नहीं है तो क्यों उसको कोच नहीं बनाया जाए? इफ ही इज द बेस्ट मैन फॉर द जॉब, व्हाई विल ही नॉट गेट द जॉब? बनाया जाए इसलिए ना बनाया जाए क्योंकि अगर मेरे भाई का कोई केस मेरे न्यायालय में होगा तो मुझे मेरी इथिक्स कहती है भाई भाई की कोई बात नहीं है, न्यायालय की बात नहीं है, ये क्रिकेट पिच है, ये खेल है। नहीं, ये क्रिकेट की पिच नहीं है, सिर्फ क्रिकेट की पिच नहीं है। अगर क्रिकेट की पिच होती तो जय शाह कैसे आईसीसी के जो है वो चेयरपर्सन होती है? मुझे बताइए, वो क्या कितना गेम खेले हुए? वो केवल अमित शाह के पुत्र हैं इस वजह से। और गौतम गंभीर साहब अगर भाजपा के सांसद रह चुके हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो उनको इस जगह पर आना ही नहीं चाहिए। Essentially the point being made is that the BJP politicizes everything including Indian cricket. The fact that Gautam Gambhir, an ex-BJP MP, is the coach of Team India is because the BJP wants him there. Well, Shreya, there are 3-4 points here. Number one, sports in India overall, is heavily influenced or at least has participation as administrators from various political parties, right? If it's not necessary, it's only the BJP or the Congress or anybody else. Point number two, is Gautam Gambhir a competent coach? He is. There's no doubt about his class as a player or his class as a coach because he's won titles. He's done remarkably well. He's won close to 20 matches out of 22 that he's been the coach as far as the T20s are concerned. As I said earlier, Shreya, with regards to India's record in tests and maybe one day international, I'd still, the jury will be out, but not for the T20s. Point number three, and I like the point that Shalini made, cricket is also by and large a captain-led game. It's not essentially always the coach that decides. Correct. The power that the captain has is huge. And in a country like India where, IPL is so big, we have possibly 50 players who can be part of this team right now, right? You won't be surprised if, Harshit Rana is out, Siraj came in instead of him, Rinku Singh might not play, Akshar Patel might play, there's Riyan Parag outside, there's Rohit Sharma, Virat Kohli, Shubman Gill, Rishabh Pant. The list is endless. To have players like this is a great benefit to Indian cricket, and 1 out of 10 losing a game, that's sport. I don't think losing one game merits this kind of conversation specifically related to religion or politics. I'm in a certain way, I'm quite sad that I'm part of this conversation right now because this should have never come up. But is Gautam Gambhir competent enough? 110%. There should not be, whether he was a BJP MLA, by that logic, Jaya Bachchan should not be acting in movies any further. Hema Malini should leave her acting because she's in politics, she's in Rajya Sabha. No. And by that logic, Mr. Kapil Srivastava's friend, Rajiv Shukla, should not be a cricket administrator either, Kapil ji. थोड़ा मतलब हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। नहीं, मेरी बात सुन ले। हाँ। मैंने जय शाह के लिए वो बात नहीं कही जो गौतम गंभीर के लिए कही है। और मैं आपको एक बात और कहता हूं कि गौतम गंभीर एक अच्छे प्लेयर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया में और कोई कोच बनने के लायक नहीं है इनके अलावा। ये बात तो आपको क्लियर करनी पड़ेगी। और मैं तीसरी बात आपको मैं क्यों क्लियर करूंगी? नहीं, ये तो चॉइस बीसीसीआई की है, और ये चॉइस बीसीसीआई की है because BCCI has to ensure that the best man is picked for the job so that the team can win. नहीं, इसके अलावा भी बहुत से प्लेयर्स हैं जो कोच बन सकते हैं और इनसे अच्छे भी औसत देने वाले लोग रहे, नहीं बने। उसका कारण मैं बता रहा हूं। अनड्यू इन्फ्लुएंस हो ही जाता है व्यक्ति जिसकी सरकार चल रही है, और उस सरकार से अगर हम नहीं, आप बात यहाँ पे ही नहीं रोक रहे ना कपिल जी, आप तो बात आगे ले गए। सीधी बात कह रहे हैं, आप तो बात आगे ले गए। आप तो कह रहे हैं दैट द टीम दैट वाज पिक्ड हैज बीन पिक्ड on the basis of the ideology that Mr. Gambhir comes from. आपने तो ये तक बोल दिया, तो बात आपने वहां तक रोकी नहीं है। मैंने ये कहा है आपको श्रेया जी
एकदम क्लियर कर लें कि मैंने क्या कहा। मैंने ये आज कहा आप क्लियर बोल नहीं रहे हैं नहीं, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या बोले? नहीं, मैंने बार बार आपको कहा कि जो इल्जाम लगाया गया वो सही नहीं है। हाँ। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं पॉलिटिक्स और क्रिकेट किसने बनाई है? जिसके वजह से भारतीय जनता पार्टी ने बनाई, भारतीय जनता पार्टी ने बनाई और एआईएमआईएम ने नहीं बनाई है और समाजवादी पार्टी ने नहीं बनाई है। अरे तो कहाँ अलग हैं ये दोनों? अलग हैं क्या? अलग हैं क्या? चलिए, let Shalini Ali respond. I don't have too much time. Shalini Ali, the charge that is coming from the Congress and the Samajwadi Party is this, that the AIMIM is doing exactly what the BJP is telling them to do because there is an election. AIMIM and Mr. Owaisi are the B team of the BJP. Polarizing से ही उनकी दुकान चलती है, तो they are doing what their masters have asked them to do essentially. आई थिंक कपिश जी थोड़े से कंफ्यूज्ड हो गए इस मैटर को लेकर। उनको एक्चुअली पता ही नहीं है कि उनको क्या स्टैंड लेना है। देखिए, कंट्रोवर्सी तो एक क्रिएट कर दी है एआईएमआईएम ने, ठीक है। अब उस कंट्रोवर्सी का अगर समाजवादी पार्टी साथ नहीं देगा तो मुस्लिम वोटर्स, आप समझिएगा, और अगर साथ देता है तो उनको भी पता है कि कैप्टन, जो मैनेजर है, जो ट्रेनर है, साथ के साथ में जो पूरी की पूरी टीम है, दे आर द वन दैट आर सिलेक्टिंग द टीम फॉर द मैच। अब ये कह देना एआईएमआईएम मुद्दा उठाता है बीजेपी के कहने पे, दैट्स ऑल बुलशिट। यू ऑल्सो नो इट, आई ऑल्सो नो इट. BJP and AIMIM don't see eye to eye. That is one of the main reasons why they don't see eye to eye, is because they are making it into a public platform, bringing today politics into religion, into everything mixed together, and now sports has also come. नहीं, वो तो BJP also plays politics of religion ना, तो let's not be holier than thou. का बहुत ज्यादा हो गया, मतलब this is silly, this is really stupid that you are saying कि नहीं जी मुस्लिम प्लेयर्स नहीं है क्योंकि बीजेपी का सांसद रह चुका है गौतम गंभीर एंड वो बीजेपी थिंकिंग का है. This is too much. This is now. They've crossed a line. Dr. Beg, have you crossed a line, and in doing so, have you managed to embarrass 3 cricket players who have done India proud, and not just cricket players, possibly the entire Muslim community as well? क्योंकि मतलब मुद्दा भी उठा रहे हैं तो क्या उठा रहे हैं बेतुका? डॉक्टर बेग, हाँ जी, बोलिए बोलिए, सवाल आपके लिए था. मैं सुन नहीं पाया. ठीक है, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, हैव यू, डॉक्टर बेग, आई हैव 20 seconds, जल्दी जवाब दीजिएगा. हैव यू, बाय रेजिंग अ मैटर दैट इज कंप्लीटली सेंसलेस एंड बेतुका, managed to embarrass not just the 3 cricket players that we are talking about here, but also the entire Muslim community? मुद्दा उठाना ही था तो कोई ढंग का मुद्दा उठा लेते. ये क्या बेतुकी बातें कर दी? ये देश के प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के छोटे कार्यकर्ता को ये सोचना होगा कि देश में हिंदू मुस्लिम हर जगह नहीं चलना चाहिए. जो उन्हीं की देन है. आज दूसरे उसको जो है उनकी पिच पे आके खेल रहे हैं. वो आज फिल्मों में भी हिंदू मुस्लिम हो रहा है, आज न्यूज में भी आप जितने भी चीजें देख लें, एडवर्टाइजिंग आप पूरी कम्युनिटी देखें, वहां हिंदू मुस्लिम हो रहा है. क्रिकेट के मैदान पे हो रहा है. आज देश के कोने कोने में इन्होंने ये बीमारी फैला दी है. क्रिकेट के मैदान पे किसने किया? डॉक्टर बेग, लोगों को क्रिकेट टीम से अलग रखना चाहिए जो भाजपा से आए हैं और भाजपा की विचारधारा मैं आपसे डॉक्टर बेग पूछ रही हूँ, आप कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम क्रिकेट फील्ड में नहीं होना चाहिए. किसने किया, मैं आपसे पूछ रही हूँ, बात किसने शुरू की है? बीजेपी, जय शाह और गौतम गंभीर. मैं डॉक्टर बेग आपसे बहस भी क्या करूं? AIMIM के नेता हैं जो ये सारी हिंदू मुस्लिम ऑन द क्रिकेट पिच करते हैं, यू आर ब्लेमिंग इट ऑन जय शाह एंड द बीजेपी. आप बताइए, कौन मानेगा आपकी बात? कहें तो ये रिडिकुलस है. नहीं, हम कहें तो पाप है, वो कहें तो रिडिकुलस है. अरे उन्होंने के मैदान को जंग का मैदान बना दिया. थोड़ी ना बोला है कि कप्तानों को हाथ नहीं मिलाने दिया जा रहा. उन्होंने थोड़ी ना बोला है कि अक्षत पटेल को ड्रॉप किया और शुभमन गिल को ड्रॉप किया इसलिए जो टीम है वो एंटी हिंदू है. उन्होंने तो नहीं बोला. खरीद लिया. ये तो आप बोल रहे हैं कि शामी और सिराज और सरफराज को ड्रॉप किया इसलिए कोच जो है एंटी मुस्लिम है. बोल आप रहे हैं, ब्लेम आप उनको कर रहे हैं. एनीवे, we'll leave it there for the moment. I think we've heard all points of views. Nikhil Sharma, thank you for joining us. I know a sad day indeed. Dr. Shalini Ali, thank you very much. Dr. Fahim Beg and Kapish Srivastava, thank you very much for your time. On that note, ladies and gentlemen, a quick break. There is more on the other side. Do stay with us.